Okay, so let me again explain you what we had done last time. थोड़ा सा बेसिक्स एक आई का वैल्यू बता देता हूँ, फिर तो आप सब लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. So there is a new term in this chapter called as I, Ashutosh. The value of I is always root of minus 1, but we never write root of minus 1, we write I only in place of root of minus 1. Okay, but if we have I square, then the value of I square is minus 1. Okay, if you solve it, you will come to know value of I cube is minus I, and value of I raised to 4 is 1. So for time being, to understand the sums, just remember and write down these four values of power of I. I का value root minus 1, I square minus 1, I cube minus I, and I raised to 4 is 1. जहां भी I होगा उस I को I रहने देंगे, बट आई स्क्वायर की जगह माइनस 1, आई क्यूब की जगह माइनस आई, एंड आई रेस टू 4 की जगह 1, ऐसा हम लिख लेंगे. तो प्लीज नोट इट डाउन, दोज हु डोंट नो एंड दोज हु आर न्यू टुडे. फाइन. Now we were solving exercise 1.1, question number 4, and there were few doubts in question number 4. So let me start few questions out of this. um, I think second one I had solved, and I have told you to try the remaining sums. So let me do question number 4. Question number 4, everyone look at here. So the numerator is 2 plus I, and in the denominator we have two terms, 3 minus I, 1 plus 2I. Okay. Now to solve this problem, we need to first solve the denominator, right? So denominator को कैसे solve करेंगे? Normal multiplication. Okay. So how do we multiply? Let's see here. 2 plus I as it is. In denominator, 3 will be multiplied to second bracket, 1 plus 2I, and then minus I will multiply to 1 plus 2I. Right? First step clear है सबको? Normal multiplication. After this, we will multiply inside. So if I multiply 3 inside, so 3 ones are 3 plus 3 twos are 6I, minus will go inside, so sign will change. So I into 1 is I, plus minus minus 2I square. Okay, now we know the value of I square. Just now I explained that I square is minus 1. Now because I square is minus 1 into minus 2 will become plus 2 in the next step. So I will write numerator as it is, denominator 3 plus 6I minus 2 into minus 1 plus 2. And now we can very well solve this. So 2 plus I upon 3 plus 2, like terms, right, will give me 5, and 6I minus I will give me 5I. Have you all understood up to this? सबको समझ में आए ये सारे steps? Please reply. Yes, आशुतोष आपको समझ में आया? आशुतोष, ओके. अभी इसके बाद क्या करना होता है आशुतोष, बाकी बच्चों ने को मालूम है, जब भी आपके पास आई का टर्म न्यूमरेटर में होगा, आई का टर्म डिनोमिनेटर में होगा, और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट का
मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। कॉन्जुगेट मतलब यही टर्म होगा, बस जो आई वाला टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5i अपॉन 5 माइनस 5i। सो 5 माइनस 5i, 5 माइनस 5i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अभी देखते हैं इसके आगे क्या होगा। सो न्यूमरेटर तो क्या होगा, 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई होगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2, 5 minus 5i, and then I multiplied to 5 minus 5i, and in the denominator it is like a plus b, a minus b, so it will be a square minus b square। उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट जब फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करो, सो 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 5 ज़ा 10 आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i माइनस 5i इंटू आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर विल बी 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, आई स्क्वायर इज आई स्क्वायर। नाउ जहां भी आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। -1 की वजह से वो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो रिमेनिंग थिंग एज इट इज। आई स्क्वायर -1, तो -1 into -5 becomes +5, and in the denominator 25, I square is -1, तो -1 की वजह से -25 will become +25, right? Now further you can see 10 and 5 are without items, उसको ऐड कर दिया तो 15 हो गया, and -10i plus 5i will give you -5i upon 50. Now we can separate them. So it will be like 15 by 50 minus 5 by 50i. And if I cancel it, it is 5 3s are, 5 10s are, 5 1s are, 5 10s are I. बीच में प्लस लाने के लिए 3/10 को ऐसा ही लिखा, माइनस को -1/10 के साथ लिखा, और बीच में प्लस लिखा और आई लिख दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus bi। सो कंपेयरिंग विथ a plus bi, आई विल गेट a का वैल्यू 3/10 एंड b का वैल्यू -1/10। ठीक है, सबको समझ में आया ये सम कैसे किया हमने? एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप स्टूडेंट? किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो अभी पूछ लो। ओके, सो नॉर्मली हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पर डिवीजन आ गया वहां पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, जब तक लास्ट में a प्लस बी आई ऐसा नहीं आ जाता है। अब देखो इसके आने के बाद अब ज्यादा आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। 3/10 -1/10, now you cannot solve it further. Okay, so this way, this is question number 4। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई द होल स्क्वायर, तो वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी फिफ्थ वन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई द होल स्क्वायर, राइट? नाउ अब होल स्क्वायर कैसे करेंगे? तो पहले तो वो जो स्क्वायर है, लॉ ऑफ इंडाइसिस में हम लोग ने सीखा है। यस, क्या सीखा है हमने कि a अपॉन बी टू द पावर m होगा, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर m, b टू द पावर m। पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, so the power will go to both the terms here also, so this will become
1 plus I the whole square and 1 minus I the whole square. Now I will apply a plus b the whole square, a minus b the whole square. So a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square. In the denominator I think everything will be same, बस बीच में माइनस टू ए बी होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आई स्क्वायर कैंसिल कर दो, वन वन कैंसिल कर दो. अरे बीच में प्लस माइनस है, ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते. जब आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है तो ही हम कैंसिल करते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कैंसिल इट. ओके, सो वी विल फर्दर सॉल्व दिस. वन स्क्वायर वन प्लस टू वन ज़ा टू आई एंड आई स्क्वायर लास्ट वाला टर्म. तो आई स्क्वायर तो मुझे मालूम है माइनस वन होता है, तो प्लस माइनस माइनस वन. Same way in the denominator, 1 minus 2 ones are 2 and this is minus 1. Now in the numerator, plus minus gets cancelled. In the denominator, plus minus gets cancelled. So I am left with 2i upon minus 2i. And now you can see that 2i and 2i also gets cancelled. So I am left with 1 upon minus 1, which is actually minus 1. But to write this in the form of a plus I will write minus 1a. I का टर्म नहीं है तो जीरो I लिख दिया. So this is in the form of a plus bi, and the value of a is minus 1 and b is 0, and this is your final answer. Understood? Understood, student? Clear exam? I need reply from all the students. Acha, Omkar is also, I think, new student. Okay, fine. Next. Now in sixth we have to cross multiply. So this into this into this, फिर आपस में नीचे का मल्टीप्लाई. सॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर तड़पने के बाद आंसर आएगा अपने को. ठीक है, अभी हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं. दिखता छोटा है बट उसमें काम बहुत सारे हैं. लेट्स सी दैट. 1 plus I to the power minus 3. 7th one. Tell me, how will you solve? What will be the first step, students? What will be the first step? Yes, very good, Rishikesh. See, power minus 3, we don't have any formula, right? But we know that in law of indices, we have a rule that a to the power negative number can be written as 1 upon a to the power of the positive number, right? So the first step will be 1 upon 1 plus I to the power 3. And after that, we have to apply the formula of a plus b the whole cube. So we all know what is a plus b the whole cube. Studied in 9th and 10th standard. That is a cube plus, right? So we know this formula. I will apply the same formula here. So I will get 1 upon 1 upon a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube.
सबको फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया समझ में आ रहा है? यस। Okay, so I think everyone understood. Let me solve it further. So 1 upon 1 cube is 1, 3, 1 square is 1 into I plus 3 ones are 3. I square we know is minus 1 and I cube we know as minus I. Very important. यहाँ पर दो दो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया. आई स्क्वायर को मैंने -1 लिखा है और आई क्यूब को -i. वो तो हमको मालूम है रूल. ठीक है, और आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो सो 1 अपॉन 1 प्लस 3 वन ज़ा 3i प्लस माइनस -3 माइनस आई. नाउ विदाउट आई वाले को साथ में लिया तो विदाउट आई वाले हैं 1 एंड -3. So 1 and -3 is -2. 3i minus 2i is plus 2i. Can we stop it here? Have we achieved the target? जो हमको आंसर चाहिए था कि we have to further solve this. क्या करना है? Okay. So we have to simplify because the term is in the denominator. We need a plus bi in the numerator. So like we did in the last problem, we will multiply by the conjugate. Conjugate मतलब I वाले term का sign change करने का. ठीक है, न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो वैसा ही रहेगा. डिनोमिनेटर इज लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते इसको. न्यूमरेटर इज एज इट इज, डिनोमिनेटर विल बी -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर. But in the next step, this I square will become -1. So let me solve this. आई थिंक मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है, आप सबको समझ में आ गया रहेगा कैसा किया हम लोग ने. देख लो आप लोग, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो आई स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया तो +4 हो गया. 4 + 4 8, फिर सेपरेट कर दिया और फिर उसको कैंसिल किया और बीच में प्लस लाने के लिए माइनस को इधर ले लिया. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, where the value of a is -1/4 and b is also -1/4. Everyone understood? Any step, any doubt you can ask.
Okay, so we have solved seventh problem also. So like this we have to solve all the questions. See, अब ये रूट माइनस थ्री है तो पहले इसको आई में कन्वर्ट करो. टू प्लस रूट थ्री आई हो जाएगा, फोर प्लस रूट थ्री आई हो जाएगा, फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड. हाँ, कुछ लोगों को नाइन्थ देख के डर लगता रहेगा, इतना बड़ा सम है. ठीक है, सो लेट मी ट्राई द नाइन्थ वन नाउ. Yeah, I am doing ninth one only. Part ninth one is one of the most simplest problem out of all the 10. Minus root 5 plus 2 root minus 4 in one bracket plus 1 minus root minus 9 second bracket plus 2 plus 3i 2 minus 3i. हम लोग सम के लेंथ को देख के डर गए, बट वी डोंट नो कि यस इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. वो बोलते हैं ना कि जो क्या, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, राइट? तो काइंड ऑफ दैट ऐसा ही है यहाँ पर. दिख तो बहुत बड़ा रहा है बट इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस, हमको सबको मालूम है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं. यस, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए बताता हूँ मैं. अगर आपके पास रूट माइनस ए है तो हम इसको कैसा लिखते हैं? पहला स्टेप, हम माइनस ए को लिखते हैं ए इंटू माइनस वन, माइनस उसमें से अलग करते हैं. फिर हम क्या करते हैं? रूट को सेपरेट करते हैं. तो रूट ए को जाता है, रूट माइनस वन को जाता है, और फिर रूट माइनस वन की जगह आई लिख देते हैं. तो इस तरीके से किसी भी रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं आई के टर्म्स में. इतना क्लियर है सबको? जैसे रूट माइनस फोर है तो हम उसको लिख देते हैं रूट फोर बाहर आई. रूट माइनस नाइन है तो हम उसको लिख देते हैं रूट नाइन बाहर आई. सबको ये समझ में आ रहा है कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं? यस, प्लीज रिप्लाई. ओके, वेरी गुड. सो आई विल बी डूइंग द सेम हियर विद दिस प्रॉब्लम. आप जरा यहां पर देखेंगे, अभी हम लोग माइनस रूट फाइव है फर्स्ट टर्म, उसको मैं कुछ नहीं करता हूं, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया. प्लस टू एज इट इज, बट देन रूट माइनस फोर है तो आई विल राइट रूट फोर एंड आई. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट प्लस वन माइनस root minus 9 can be written as root 9i and then the bracket close plus ये वाला जो टर्म है वो तो सिंपल दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, सो आई कैन राइट दैट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आई होप सबको ये फर्स्ट स्टेप तो समझ में आया होगा, राइट? अभी इसको ही सॉल्व करना है अपने को, तो देखते हैं. माइनस रूट फाइव एज इट इज, ओपन द ब्रैकेट, बीच में प्लस ही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वी कैन डू दैट. सो माइनस रूट फाइव एज इट इज. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, हेलो. यस स्टूडेंट्स, सो माइनस रूट फाइव प्लस टू एज इट इज. अभी रूट फोर तो टू होता है ना, तो उसको फर्दर सॉल्व कर दिया. टू आई ब्रैकेट क्लोज, या तो ब्रैकेट ओपन कर दो अभी, नो प्रॉब्लम. प्लस वन माइनस रूट नाइन होता है थ्री आई, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट फाइव, टू टू ज़ा फोर आई
plus 1 minus 3i plus 4, and because of minus I square this becomes plus 9. Now out of these terms take all terms together which do not have I. So 1 के अंदर I नहीं है, इसके अंदर भी I नहीं है, इसमें भी I नहीं है, इसमें भी I नहीं है, इन सबको ऐड कर लो तो आप देखोगे तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, और ये तो ऐड नहीं होगा तो उसको वैसा ही लिखेंगे 14 माइनस रूट 5, ये हो गया मेरा ए। और अब जो आई वाले टर्म है वो साथ में आएंगे, प्लस 4i एंड माइनस 3i, दैट विल गिव मी प्लस आई, यानी प्लस आई मतलब क्या, 1i। तो नहीं लगता आपका आंसर आ गया a प्लस बी आई, जहां पर a का वैल्यू है 14 माइनस रूट 5 एंड b का वैल्यू है 1। यस बच्चों, समझ में आया? आप देख लो सारे स्टेप्स, कहीं भी आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो आप मुझे बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पूछो। हाँ तो बहुत ही सिंपल था, केवल सब्स्टिट्यूट करके आप थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए रहोगे कि कैसे लेना है रियल पार्ट्स। जो भी नंबर में आई नहीं है उनको एक साथ ले लो और जिसमें आई है उसको साइड में रख दो। ओके, वेरी गुड। अभी हम एक और सम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से। आई थिंक 11th वन आप लोग को थोड़ा लगता होगा सर ये तो आई रेस टू 8 है, इसको कैसे करेंगे एंड ऑल। सो लेट अस सॉल्व 11th प्रॉब्लम नाउ। 11th one, the question is 4i to the power 8 minus 3i to the power 9 plus 3 upon 3i to the power 11 minus 4i to the power 10 minus 2। यस, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले ये जो आई के बड़े बड़े पावर्स दिख रहे हैं उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमको मालूम है उससे। जैसे सबसे पहले आई रेस टू 8 फाइंड आउट करेंगे। अब आई रेस टू 8 को मैं आई रेस टू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 बार आई रेस टू 4, राइट। क्यों आई रेस टू 4 लिखा, क्योंकि आई रेस टू 4 का वैल्यू मुझे मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर आंसर इज 1, तो आई रेस टू 8 का वैल्यू 1। समझा आशुतोष एंड ओमकार? आई थिंक नए उनको समझ में आया मैंने आई रेस टू 8 को कैसे सॉल्व करके 1 लिखा है बच्चों। वेरी गुड। अब हम आई रेस टू 9 फाइंड करेंगे। अब जैसे आपको आई रेस टू 8 मालूम है ना, तो आई रेस टू 9 ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आई रेस टू 9 को लिख सकते हैं आई रेस टू 8 जो ऑलरेडी आपने फाइंड किया इंटू आई। आई रेस टू 8 इंटू आई इज आई रेस टू 9। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, तो आई रेस टू 8 आपने ऑलरेडी फाइंड किया 1, तो 1 लिख दिया इंटू आई एज इट इज, 1 इंटू आई इज आई, हो गया। अरे समझा क्या? सिमिलरली आई रेस टू 10 उसको लिखेंगे आई रेस टू 9 इंटू आई। अभी आई रेस टू 9 अपने को मालूम है आई, तो ये हो गया आई इंटू आई, आई इंटू आई इज आई स्क्वायर इज -1। समझ में आ रहा है बच्चों? लास्ट वन आई रेस टू 11 उसको लिख देंगे आई रेस टू 10 इंटू आई, राइट। आई रेस टू 10 इज -1, यहाँ से इंटू आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा। सबको ये चारों वैल्यू समझ में आए? आई टू द पावर 8 9 10 11। Let me know if you have any doubt in finding the values of powers of I. No doubt. Fine. So let me substitute back in these equations. So क्या क्या है लिख देते हैं हम लोग। 4i⁻8 था तो i⁻8 1 हो गया, प्लस i⁻9 है i, तो -3 है, सॉरी -3 i⁻9,
I रेस टू 9 इज I, उसके बाद है +3 अपॉन, उसके बाद है 3i रेस टू 11। सो 3i रेस टू 11 आया है माइनस आई, देख लो आप लोग, i रेस टू 11 माइनस आई, -4i रेस टू 10, -4i रेस टू 10 इज -1, और लास्ट टर्म है -2। आई थिंक सबको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। तो 4 1 ज़ा 4, 3 × I 3i +3, -3i +4 -2। सॉल्व कर लेंगे तो 4 - 3, 1 -3i, 4 -2, 2, so 2 -3i। And now we can further solve it by taking conjugate. So multiplying and dividing by 2 + 3i, and I think now you can solve and get the answer। क्या बोलते हैं आप लोग, कर सकते हैं कि नहीं इसको आगे? तो चलो इसको सॉल्व कर लो, कंप्लीट करो ये। लेट्स सॉल्व दिस। ऋषिकेश बोल रहा है 7 - 3i, हर्षित बोल रहा है 7 + 3i। डिसाइड करो भाई किसका राइट है। अच्छा 7 - 3i है, ओके। प्लीज सॉल्व दिस एंड कंप्लीट। ऐसे मैंने बोला था 3 to 4:30 लेक्चर के लिए, बट आज नहीं लूंगा ज़्यादा बिकॉज ऑलरेडी रक्षाबंधन है। फ्यू पीपल हैव नॉट येट ज्वाइंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, और कुछ ना कुछ घर का भी रहेगा। सो वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम लोग ये स्टॉप करेंगे आज के लिए। कभी और हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। टेल मी द आंसर स्टूडेंट्स। Parth has given 23/13, 15/13. Is this is the answer? पार्थ किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो आप? अच्छा 11th का ही आंसर बता रहे हो, ओके। सबको यही मिला है क्या? पार्थ ने जो आंसर सेंड किया है 23/13 + 15/13। सॉल्व करो आप लोग, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा। 1 का मल्टीप्लाई सेम आएगा 2 + 3i। दिस इज -6i -9i²। a² - b², you would have got as 2² -3i the whole square। ये हो जाएगा 2 - 3i +9 अपॉन 4 + 9। So 9 + 2 11 -3i। यस, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या बच्चों? अच्छा सॉरी, 4 + 3 है ना, मैंने 1 लिख दिया वहाँ पर। अच्छा वो आप लोग बोल रहे थे 7 - 3i, आई थॉट आंसर बता रहे। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, so this is going to be 7 - 3i। So 7 2s are 14, 7 3s are 21, -6i -9i². So in the next step, it is going to be 14, 21i, 14 plus 15i plus 9. Then it is going to be 14 plus 9, 23 plus 59. And then I think 23/13 plus
15/13i will be your answer. So a का वैल्यू 23/13, b का वैल्यू 15/13 is the final answer. Understood everyone? Clear? ठीक है. सो आई थिंक अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग सब लोग सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो आप लोग वापस से फोर्थ के क्वेश्चन जिसको जो जो डिफिकल्ट लगा था वो घर पे ट्राई करोगे. कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको. ठीक है, आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं. Okay students, so thank you very much, and those who have presented, they have presented very well. Ashutosh very sorry, Anurag, you presented very well. Even Parth, Prem, Mathri, Pradyuman, everyone was very good. बट कुछ ना कुछ हमको थोड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है कंसेप्ट के क्लैरिटी के अंदर. सो विल डिस्कस, लाइक सबका कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग एक एक का फीडबैक के ऊपर भी बात करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय बाय, टेक केयर. Once again,